Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the solid waste generation and management chapter, chapter 5, unit number 2. Okay. Disposal of the solid waste. Disposal is the last step of the solid waste management. Okay, due to the heterogeneity of the city refuse, it is important to select the most appropriate waste disposal method, keeping in view द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो मटेरियल क्या है, डिफरेंट होता है, एक ही मटेरियल नहीं होता है। दिस वन इज कॉल्ड हेट्रोजेनिटी, ओके, ऑफ द सिटी रिफ्यूज। सिटी का जो रिफ्यूज होता है उस वो डिफरेंट मटेरियल का होता है। इसके लिए उसको उसके लिए वेस्ट डिस्पोजल के मेथड, इसीलिए वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए मेथड चूज करना, वो सब अप्रोप्रिएट मेथड चूज करना, वो सब मेथड चूज करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उसके रिलेटेड है। It should be economically viable. The RMO, that means running maintenance and operation cost, should be carefully assessed. That means जो भी running maintenance and operating cost हो सकता है, ओके, बहुत महंगा ना हो, वो भी देखना चाहिए। इकोनॉमिकली वायबल, दैट मीन्स इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए हमारे लिए, इकोनॉमिकली वो इजीली हम रन कर सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसी मेथड चूज करनी चाहिए। कॉस्ट उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। It should not create the health hazards. It should not be aesthetically unpleasant. It should not result in off-ending sights, odors and noise. That means सिस्टम ऐसी, डिस्पोजल की सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि स्मेल, नॉइज, वो सब जो न्यूसेंस होते हैं वो ना हो। दूसरा, एस्थेटिकली कोई एरिया है वहाँ पे डिस्पोजल मेथड ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आप जो भी डिस्पोजल मेथड यूज कर रहे हो तो वो एरिया को गंदा ना करे, ऐसी डिस्पोजल मेथड होनी चाहिए। It should not cause adverse environmental effect. It should preferably provide appropriate. It should preferably provide opportunities for the recycling of the material. That means मेथड ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें से जो वेस्ट मटेरियल जो भी कलेक्ट हुआ है उसमें से जो भी मटेरियल का रिसाइकल हो सकता है वो पॉसिबल हो, ऐसी मेथड होनी चाहिए। Various methods of commonly used for the solid waste disposal are open dumping, sanitary landfilling, then incineration, then composting and pyrolysis. Okay. Other methods like disposal in sea and pulverization are also sometimes used. Open dumping. In this method, the solid waste is dumped in low-lying areas and outskirts of the cities, being relatively cheaper. ये cheap method है. Okay. Cost wise आप देखें तो ये method सस्ती है. This method is being used. इसमें cost ज़्यादा नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। This method is being used extensively in India. However, this method is non-engineering method, okay, having lot of disadvantages and so should not be used. तो इसमें क्या है, लो लाइंग एरियाज और सिटीज, आउटस्क्रिट्स ऑफ द सिटीज जो भी है, ओके, वहाँ पे ये जो भी सॉलिड वेस्ट है डंप किया जाता है, ओके। आउटस्क्रिट्स यानी जो भी सिटी और टाउन के बाहर का जो एरिया है वहां पे डंप किया जाता है, ओके। तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। Public health hazards are caused by the breeding of flies, mosquitoes, rats and other pests. It would create the problem of obnoxious odor problem in surrounding area. तो वहाँ पे एक प्रकार की स्मेल वो एरिया में रहती है, उसकी वजह से सराउंडिंग एरिया में स्मेल रहती है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। If the waste dumped in the open area is burned, it would cause air pollution due to the release of various gases and particulate एयर पॉल्यूशन। तो जो भी डंप मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट है, तो वो जलेगा, ओके, बर्न होता है वो एरिया में, उसकी वजह से वो जलने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ओके। एंड ओपन डंपिंग रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया। तो ओपन डंपिंग के लिए लार्ज लैंड एरिया चाहिए। ये सब उसके डिसएडवांटेजेस है।
sanitary landfilling. So in this method, the solid waste is disposed or dumped either in naturally available low-lying areas or by digging the trenches or in open areas under an engineered operation. That means यहाँ पे क्या है, engineered operation के द्वारा ये सब properly management के साथ ये solid waste disposal होता है, तो उसमें प्रॉब्लम कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, वो नेचुरली अवेलेबल जो भी लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट का डिस्पोज करते हैं और ट्रेंचेस बनाते हैं, ओके, खड्डा बनाते हैं, तो जिसमें वो सॉलिड वेस्ट जो भी है उसको डिस्पोज करते हैं और वहाँ पे डिस्पोजल करते हैं, ओके, सॉलिड वेस्ट का वहाँ पे डालते हैं। Designed and operated according to the acceptable standards, not causing any nuisance or hazards to the public health or safety. There are two main methods used for the sanitary landfilling: area method, trench method. In landfilling method, the solid waste is dumped and compacted, spread in thin layers of 0.3 to 0.6. तो एक thin layer बनाते हैं, उसकी thickness कितनी होती है, 0.3 to 0.6 meter. This process continues until a total depth of 1.5 to 2 meter is achieved. At the end of day's work, 15 to 30 centimeter cover of good earth is placed. That means ये इतनी depth हो गई, उसके बाद 15 टू 30 सेंटीमीटर कवर बनाते हैं गुड अर्थ का, वो प्लेस करते हैं, एक लेयर बनाते हैं, उस पर मिट्टी डालते हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट है उस पर उसकी सॉलिड वेस्ट, फॉर एग्जांपल ट्रेंच बनाया हुआ है, ट्रेंच में वो सॉलिड वेस्ट डाला, उसकी हाइट 1.5 टू 2 मीटर हुई, तो एक लेयर अर्थ का बनाते हैं, ओके, जिसकी वजह से जो मॉस्किटो न्यूसेंस, फ्लाई न्यूसेंस, वो सब जो होता है वो नहीं होगा, okay. Good earth is placed over the completed field. This will prevent rodents from the burrowing into the refuse and will also solve the problem of fly nuisance. With the passage of time, the refuse will get stabilized due to decomposition of the organic matter by bacteria, okay. This will get stabilized due to the With the passage of time, the refuse will get stabilized due to decomposition of the organic matter by bacteria and will be converted into stable compounds. If the proper care is taken in design and operation, problem of groundwater pollution by the percolation of the leachate can also be solved. तो उसमें क्या होता है, हम प्रॉपर केयर करेंगे तो जो भी पॉल्यूटेंट जो भी लीचेट है, मैंने बताया था व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय लीचेट, तो लीचेट जो भी गंदा पानी है वो ग्राउंड वाटर को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट लेयर जो होता है वो इम्परमेबल लेयर होता है, दैट मीन्स उसमें से कुछ पास कोई भी मटेरियल, पानी, कुछ भी वहां से पास नहीं हो सकता है, ओके, तो और परकोलेट नहीं होगा, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूट होता है वो नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बाय परकोलेशन ऑफ द लीचेट कैन आल्सो बी सॉल्व्ड. दिस कैन बी डन यूजिंग द impermeable membrane at the base. The gases like CH4, CO2, H2S produced by biological decomposition are also collected through the gas valve, thereby avoiding the risk of air pollution. तो जो भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है आर कलेक्टेड थ्रू द गैस वेल, दैट मीन्स जो भी गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए गैस वेल बनाते हैं, वो क्या होता है, वो कलेक्ट करता है, उसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन होता है वो नहीं होगा, और वो गैसेस का यूज करके हम एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सब हम जनरेट कर पाते हैं, उसका कोई भी दूसरा भी यूज हम कर पाते हैं, बट जो एटमॉस्फेयर में जाके वो एयर पॉल्यूशन करेगा वो नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है, ओके. आफ्टर फ्यू इयर्स द साइट कैन बी यूज्ड बाय फॉर द डेवलपिंग पार्क्स एंड अदर रिक्रिएशनल यूज. तो बहुत टाइम के बाद ये पार्क को आप रिक्रिएशनल और डेवलपिंग पार्क और रिक्रिएशनल यूज के हिसाब से आप यूज भी कर पाते हो. ऐसा नहीं है कि भाई चलो वो एरिया में आपने डिस्पोजल किया, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल किया तो वो यूज नहीं कर पाओगे, आफ्टर फ्यू इयर्स आप उसको यूज कर पाओगे, okay? तो ये मेथड का ही एडवांटेज है.
The advantages and disadvantages of this method are: advantages, method is simple, no costly plant required, इसमें प्लांट की कोई ज़रूरत नहीं है. That means यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स इज नॉट रिक्वायर्ड, डिफरेंट मटेरियल का इसमें सेपरेशन ज़रूरी नहीं है. Okay, then no residue or poly products by products need to be disposed. Okay, then low lying areas and land can be reclaimed. तो लो लाइंग एरिया और लैंड हमें रिक्लेम नहीं करनी पड़ती है इसमें. ओके, रिक्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी इसका मतलब क्या है कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोज हो गया है तो उसको वापस रिक्लेम करो, वो सब इसमें जरूरी नहीं है. प्रॉपर डंपिंग साइट मे नॉट बी अवेलेबल, तो डंपिंग साइट अवेलेबल नहीं होती है. लार्ज एरियाज आर रिक्वायर्ड, इसमें लार्ज एरिया चाहिए ये मेथड के लिए. ऑर्डर प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन क्लोज वेसिनिटी ऑफ द साइट, तो ऑर्डर जनरेट होता है, स्मेल आती है एक प्रकार की, जिसकी वजह से वो एरिया में थोड़ा एयर पॉल्यूशन रहता है. ओके, स्मेल आती है तो उस एरिया के नज़दीक में कोई नहीं रह सकता. ओके, ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, स्मेल का प्रॉब्लम होता है. Use of the insecticide is required. Then earth has to be borrowed from other areas for other layers. Earth has been borrowed from the other areas for other layers. Okay. In creation, इट इज़ द मेथड ऑफ थर्मल रिडक्शन, तो उसमें थर्मल एनर्जी का यूज होता है. दैट मीन्स जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है उसको जलाया जाता है. ओके, अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस. तो जो भी प्रोडक्ट जो जल पाती है उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड वेस्ट है उसको उस सॉलिड वेस्ट का प्रोपोर्शन जो होता है वो कम हो जाता है. Incineration can be defined as controlled combustion process for burning solid waste. Combustible waste like paper, cardboard, rubber, plastic, cardboard, food scraps, cartoons, dried leaves, food waste, etc. can be incinerated. Then incineration results in air pollution, and so proper air pollution control equipments have to be installed to control the air pollution. तो जलाने से क्या होता है, एयर पॉल्यूट होता है, तो उसके लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन है होता है वो कंट्रोल में रहे. इन ऑर्डर टू मेक मैथड इकोनॉमिकल, द हीट जनरेटेड कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ द स्टीम. तो जो भी जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, तो जो भी जनरेटेड हीट है इट कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ द स्टीम. वेस्ट हीट बॉयलर कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल. वेस्ट हीट बॉयलर हमें लगाना चाहिए जिसकी वजह से जो भी हीट एनर्जी है वो यूज कर पाए. ओके, तो वेस्ट हीट बॉयलर कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड विद द इंसिनरेटर, रिकवर यूज the heat energy. This will help in partly recovering the cost of waste collection and disposal. तो जो भी इसका कॉस्ट निकल जाता है बिकॉज इसका हीट एनर्जी का आप यूज कर पाते हो. ओके, तो उसकी वजह से जो पैसा मिलता है उसका जो कॉस्ट होता है, किसी को हम वो प्रोवाइड करते हैं हीट एनर्जी, तो उसका जो कॉस्ट होता है प्रोवाइड करने के बाद आपको जो पैसा मिलता है उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ वाटर वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल का जो भी कॉस्ट होता है वो रिकवर हो जाता है. Composting, if the organic material excluding plastic, rubber, leathers are separated from the municipal waste and are subjected to bacterial decomposition, तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक, रबर और लेदर निकाल देना है, सेपरेटेड फ्रॉम द म्यूनिसिपल वेस्ट एंड आर सब्जेक्टेड टू bacterial decomposition, and add products remaining after the bacterial activity is called the compost or humus. Compost can be used as a fertilizer. तो ये सब प्लास्टिक, रबर और लेदर निकालने के बाद जो भी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन सॉलिड वेस्ट का होता है उसको क्या बोलता है, कंपोस्ट और ह्यूमस बोलते हैं. कंपोस्ट कैन बी यूज एज ए फर्टिलाइजर, तो एज ए फर्टिलाइजर आप यूज कर पाते हो.
ओके तो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से क्या बनता है, ये जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है उसकी वजह से कंपोस्ट बनता है और उसको आप फर्टिलाइजर आप यूज कर पाते हो. द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्विंग both the separation and bacterial conversion of the organic solid waste into compost is known as composting. In this separation और bacterial conversion of the organic solid waste जो भी है उसका हम bacterial conversion करते हैं, bacterial decomposition करते हैं और उसको ये सब process है. This one is called composting. In this process, compost pile is prepared by making alternate layers of solid waste and soil and sewage. Okay. Then water is periodically added to maintain the necessary moisture level of around 55%. Periodically, the solid waste is turned over all penetration of oxygen, all the parts of the pipe, and to facilitate the aerobic decomposition. तो उसमें क्या किया जाता है, इन दिस प्रोसेस कंपोस्ट फाइल इज प्रिपेयर, कंपोस्ट फाइल प्रिपेयर किया जाता है जिसमें बाय मेकिंग ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रिपेयर किया जाता है एंड सॉइल एंड सीवेज. ओके एंड सॉइल एंड सीवेज एंड द वाटर इज पीरियडिकली, इसमें वाटर भी ऐड किया जाता है. ओके एडेड टू मेंटेन द नेसेसरी मॉइस्चर लेवल ऑफ अराउंड 55%, तो इसमें मॉइस्चर क्रिएट होता है. ओके पीरियडिकली आप उसको में मॉइस्चर लेवल मेंटेन करता है 55%. देन पीरियडिकली द सॉलिड वेस्ट इज टर्न ओवर टू अलाउ द पेनिट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो आपको पीरियडिकली सॉलिड वेस्ट को क्या करना होता है, टर्न करना होता है, जिसकी वजह से जो भी ऑक्सीजन है वो ऑल पार्ट्स ऑफ पाइल में जाए. ओके और एरोबिक डिकम्पोजिशन हो, दैट मीन्स ऑक्सीजन की हाजिरी में और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन हो. ओके इसके लिए आपको पीरियडिकली सॉलिड वेस्ट को टर्न करना है. इट टेक्स नियरली ए मंथ फॉर कंपोस्टिंग टू बी कंप्लीट. द फाइनल कंपोस्ट शुड हैव एन अर्थी स्मेल एंड ए डार्क ब्राउन कलर. तो फाइनल जो भी कंपोस्ट होता है वो स्मेल, अर्थी स्मेल उसमें से आती है और उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है और उसको आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर पाते हैं. Then method of composting which are generally used are as follows. Composting by the trenching, then open window composting, then mechanical composting. Okay. In India, two processes are commonly adopted for composting, which are essentially trench method. These processes are indoor method and Bangalore method. Then pyrolysis. In this method of the disposal, the combustible constituents of the solid waste are heated at a 650 to 1000 degree centigrade in oxygen free environment. तब तो आपको जो भी कंस्टिट्यूट सॉलिड वेस्ट का है जो जल सकता है उसको आपको ऑक्सीजन की हाजिरी में हीट करना है. द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सॉलिड वेस्ट स्प्लिट अप इनटू 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस. द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट जो होता है वो 3 फ्रैक्शन में डिवाइड होता है. गैसियस फ्रैक्शन विच इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड सम हाइड्रोकार्बन्स. देन लिक्विड फ्रैक्शन में क्या इंक्लूड होगा, विच इंक्लूड्स tar, देन पिच, लाइट ऑयल, low boiling point organic chemicals like acetic acid, methanol, acetone, etc. Soil fraction which includes the charred carbon. Pyrolysis is highly endothermic process and it differs from the incineration. It is also called the destructive distillation. Okay. Thank you.